नमस्कार, आदाब। आसनसोल टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं आफरीन हाजिर हूं आज के बुलेटिन के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले स्पॉन्सर्ड बाय डेकोर वॉलपेपर। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। को स्पॉन्सर्ड बाय RLK नर्सिंग होम। जनता को इन मुश्किल हालातों में राहत पहुंचाने के मकसद से RLK नर्सिंग होम में इलाज के खर्च में भारी कटौती करने का फैसला लिया गया है। ग्लोबल वॉलपेपर। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर। आसनसोल के SB गुराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्टोरेंट। जी हाँ दोस्तों, द जायका फास्ट फूड रेस्टोरेंट। यहाँ रोल, सूप, मोमो, इंडियन डिशेस, तंदूरी वेज, मशरूम, बिरयानी, रोटी, चाउमीन, हक्का नूडल्स सभी उपलब्ध है। 3 किलोमीटर के दायरे में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए द जायका फास्ट फूड रेस्टोरेंट। एक बार फिर से पूरे बंगाल के साथ साथ पश्चिम बर्दवान जिले में भी कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। इस संदर्भ में हमने पश्चिम बर्दवान जिले के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी मोहम्मद यूनुस खान से बात की। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में कोरोना का ग्राफ बढ़ा है और रोज पहले के मुकाबले ज्यादा कोरोना के मरीज पाए जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस बार कोरोना बीमारी की तीव्रता इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरह से लोग भीड़ भाड़ वाली जगहों पर भी मास्क नहीं पहन रहे हैं और सभी प्रकार के धार्मिक हो या राजनीतिक या अन्य कोई अनुष्ठान किए जा रहे हैं, उस पर भी उन्होंने चिंता जताई। बच्चों में कोरोना के असर पर मोहम्मद यूनुस खान ने कहा कि बच्चों में भी कोरोना पाए गए हैं, लेकिन उनमें बीमारी की तीव्रता कम है। कोविड আমাদের এক মাস আগে যা ছিল তার থেকে অনেক গুণে বেড়েছে। আমাদের জুনের প্রথম দিকে, জুনের মিডল পর্যন্ত, জুনের ফার্স্ট হাফে যেটা ছিল দিনে 2, 1, 4টে কেস এরকম কেস থাকছিল এবং অ্যাক্টিভ কেস 6টা 8টা এরকম অ্যাক্টিভ কেস থাকছিল। এখন সেটা কোনো দিন 100-র উপরে 140-45, গতকাল কেস ছিল 79। তো আমার আজকের ডেটে অ্যাক্টিভ কেস 733। অ্যাক্টিভ কেস যেমন অনেক হচ্ছে, কিন্তু সেই পরিমাণে অ্যাডমিশন কিন্তু কম, মানে সিরিয়াস কম হচ্ছে। যেগুলো কোমরবিড বা বয়স্ক সেগুলোর ক্ষেত্রেই সিরিয়াসটা হচ্ছে, হয়তো একটা কিন্তু সিরিয়াস এটা হওয়াটা কম। পাবলিক তো একদমই গুরুত্ব দিচ্ছে না এটাকে। সব থেকে ভয়ের ব্যাপার এটা যে সব জায়গাতে ভিড়, বাজারে হাটে কারো মুখে মাস্ক নেই, বাসে ট্রেনে কোনো জায়গাতেই কারো মুখে মাস্ক দেখবেন না, এবং ভিড় করে সব রকম অনুষ্ঠানই চলছে। তাতে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে, রাজনৈতিক অনুষ্ঠান যাই বলি, সব জায়গাতেই ভিড় করে সব রকম চলছে। আর একটা যেটা আপনি জিজ্ঞেস করছিলেন প্রথমে, যে আমাদের ভ্যাকসিনেশনের ক্ষেত্রেও একটা অনীহা দেখা যাচ্ছে মানুষের মধ্যে। এটাও আপনারা যদি একটু প্রচারে রাখেন যে ভ্যাকসিনগুলো যার যেমন ডিউ, সেকেন্ড ডোজ বা 60 বছরের উপরে যারা প্রিকশন ডোজ বা বুস্টার ডোজ যেটা, সেটা যাতে পাবলিক সবাই যেন নিজের সময় মতো নিয়ে নেয়। আমাদের প্রায় 2,75,000 মতো সেকেন্ড ডোজ ডিউ আছে। আমরা কাউকেই দিতে পারছি না, মানে ডেকেও বাড়ি বাড়ি গিয়েও ডেকে লোকজনকে আনা যাচ্ছে না, এই সিচুয়েশন। বুস্টার ডোজ কি করছে? বুস্টার ডোজ আমাদের মোটামুটি টার্গেট ছিল 2,91,000 মতো, 1,10,000 মতো হয়েছে। বুস্টার ডোজ ফিরে গেছে ব্যাপারটা তা না, আমাদের ভ্যাকসিনের স্টক যেটা হয়েছিল, ভ্যাকসিনের স্টক অতটা খরচ হয় না বলে কিছুটা ভ্যাকসিন আমরা ফেরত, জেলার থেকে ফেরত গেছে। আমাদের হাতে এখনও সাফিসিয়েন্ট ভ্যাকসিন আছে। প্রথম 2জন শিশু ধরা পড়েছে করোনা আক্রান্ত, এটা চিন্তার বিষয়। তো
শিশুদের ক্ষেত্রে সচরাচর যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে খুব মারাত্মক হচ্ছে না। শিশুদের ক্ষেত্রে কিন্তু মাইল্ড রোগই হচ্ছে, যদি আর অন্য কোনোভাবে না হয়, মাইল্ড রোগই হচ্ছে। যেভাবে গ্রাফ বা করোনার গ্রাফ দিনকে দিন বেড়ে চলেছে, কতটা চিন্তার বিষয় দাঁড়িয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে? আমাদের থার্ড ওয়েভের ক্ষেত্রে দেখেছি, মানে সেকেন্ড ওয়েভ যেটা ছিল বা ফার্স্ট ওয়েভের ক্ষেত্রে যেটা ছিল, আমাদের অনেকটা সময় নিয়ে হয়েছিল। কিন্তু থার্ড ওয়েভের ক্ষেত্রে আপনারা দেখেছেন যে গ্রাফটা হঠাৎ করে উঠে হঠাৎ করে পড়েছে। আমাদের যে বিশেষজ্ঞরা যেটা বলছেন যে এই ফোর্থ ওয়েভ যদি বলেন এটাকে, ফোর্থ ওয়েভটাও এরকমই হঠাৎ করে উঠে হঠাৎ করেই পড়বে, খুব বেশি লম্বা দিন স্থায়ী হবে না। कुल्टी सेल ग्रोथ वर्क्स फैक्ट्री में 10 अस्थायी कर्मचारियों पर बिजली के तार चोरी करने का आरोप लगाया गया है। अस्थायी कर्मचारियों ने विरोध में कुल्टी सेल ग्रोथ वर्क्स फैक्ट्री के बाहर प्रदर्शन किया। इस घटना से मंगलवार को क्षेत्र में अशांति फैल गई। कुल्टी सेल ग्रोथ वर्क्स फैक्ट्री के अस्थायी कर्मचारियों ने कहा कि कारखाने से बिजली के तार चोरी हो गए थे। चोरी का आरोप बिजली विभाग के 10 अस्थायी कर्मचारियों पर लगाया गया था। उन्हें पुलिस ने परेशान भी किया था। विरोध में विरोध प्रदर्शन किया गया था। उनकी मांग है कि चोरी के इस झूठे आरोप को तुरंत वापस लिया जाए और प्रबंधन माफी मांगे। आपका नहीं है, वो इंक्वायरी में आपका नहीं है। पूछताछ तो नहीं हुआ ना सर, मेरे बात समझिए सर। नहीं, कल का रेट में पीबीसी आप लोग मांगते हैं सर, सीएसएफ गेट पे हम जाएंगे, पीबीसी वो अलग चीज है, एडवर्जर एक वो रिकॉर्ड तो चल रहा होता है है क्राइम का। नहीं सर, पीवीसी जो है ना, पीवीसी होता है क्राइम का। नहीं सर, ठीक है ना? एक कुछ भी रिकॉर्ड रहता तो पीबीसी में नहीं लगा था। वो लिख देगा कि एक रिकॉर्ड है इनके नाम पे। बताया आपको, ये आप लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग। सुनिए मेरी बात, कोई एफआईआर किसी के नाम पे नहीं हुई है। इसलिए बुलाया था। আজকে বিক্ষোভ দেখানো হচ্ছে। বিক্ষোভ দেখানো হচ্ছে আমাদের এখানে এমসিএইচ বলে একটা রুম আছে, সেখানে ইলেকট্রিকের কিছু কেবল চুরি হয়েছে এবং সেই চুরির কেসটা পুরোটাই আমাদের 10 জন ইলেকট্রিক্যাল আছে, সেই 10 জনের নামে ওই ম্যানেজমেন্ট করছে, বলছে যে এরাই চুরি, এদের মধ্যে কেউ চুরি করেছে। তার কারণে আজ পুরো প্ল্যান্ট আমাদের সহায়তায় আমাদের সাথে এসে যোগ দিয়েছে। মানে যাদের উপর অভিযোগ করা হয়েছে তারা কি ঠিকা শ্রমিক? ঠিকা শ্রমিক, তারা সবই ঠিকা শ্রমিক, সব কন্ট্রাক্টর আন্ডার। আচ্ছা, কালকে নিয়ে এসেছিল, গতকাল নিয়ে এসে আমাদের উপরে ইনভেস্টিগেশন করেছিল এবং প্রত্যেকটারই মত একটাই মত যে এই 10 জনের মধ্যে কেউ চুরি করেছে। তো আমরা যদি চুরি করে থাকি তাহলে আমাদেরকে সিআইএসএফ ধরুক এবং ধরে রেড হ্যান্ডে ধরে ই করুক, তাহলে আমরা ই করে নেবো, সারেন্ডার করবো। আদারওয়াইজ আমাদেরকে এভাবে কথা বলার কোনো অধিকার কোনো ম্যানেজমেন্ট বা কোনো ডিফেন্সের লোকেদের উচিত না। কারণ আমরা সাধারণ মানুষ, আমরা সামান্য টাকা এখানে তো এসডব্লিউজিতে খুবই সামান্য মাইনে, সামান্য মাইনেতে সবাই কাজ করে এবং নিজের সংসারকে কোনো রকমে চালাচ্ছে। তাহলে এভাবে ব্লেম দেওয়াটা কোনো যুক্তি আছে কি? একে নিয়ে এসে আপনাদেরকে হেনস্থা করা হয়েছে। ম্যানেজমেন্ট সিএসএফ দুজনে মিলে রাজ্য পুলিশকে নিয়ে এসছে যে এরাই চোর, এদেরকে ইনভেস্টিগেশন করার সময় আমাদেরকে বারবার একটা কথাই বলা হচ্ছিল যে এদের 10 জনের মধ্যে এরাই চোর, কেউ না কেউ চোর আছে এদের মধ্যে। এখন আপনারা কি চাইছেন? এখন আমরা চাইছি ম্যানেজমেন্ট আমাদের কাছে পরিষ্কারভাবে সমস্ত কিছু যা করেছে, থানা পুলিশ টোটালটাকে উজ্জ্বল করতে হবে এবং আমাদের সামনে ক্ষমা চাইতে হবে যে এই জিনিসটা যেটা আমরা করেছি বা বলেছি সেটা খুবই অন্যায় করেছি এবং সেটা স্বীকার যতক্ষণ না করবে, যতক্ষণ না ক্ষমা চাইবে, ততক্ষণ আমরা এই প্ল্যান্টের বাইরে থাকবো, কোনো কাজকর্ম আমরা করব না। কতজন শ্রমিক রয়েছেন আপনারা? শ্রমিক এখানে 500 জন লোক, 500 জন শ্রমিক আছেন এবং টোটালটাই আউটসোর্সিং। এখানে रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स भवन में सोमवार रात को एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। साथ ही एक सेमिनार भी हुआ जिसका मुद्दा था शिक्षा का बदलता चेहरा और भविष्य की चुनौतियां। इस मौके पर एसकेएस ग्रुप के प्रख्यात शिक्षाविद तथा चेयरमैन एसके शर्मा, एसकेएस ग्रुप के सचिव मयंक गौतम, एसकेएस पब्लिक स्कूल रानीगंज के प्रिंसिपल संदीप कुमार सिन्हा, प्रख्यात उद्योगपति दीपक संथालिया, नॉर्थ पॉइंट स्कूल के प्रिंसिपल राजीव सौब, BMOH अरशद अहमद मुख्य रूप से उपस्थित थे। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष और चैम्बर के शिक्षा कमेटी के चेयरमैन अरुण भारतीय,
सचिव मनोज केसरी, रानीगंज के प्रख्यात उद्योगपति और समाज सेवी आरपी खैतान सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद थे। मैं हमारे जोरदार तालियों से खुद को स्वागत करना रानीगंज ब्रांच ज्वाइन किया है। थैंक यू सर फॉर कमिंग। इनका एक परिचय और है, ये हमारे डॉक्टर कयूम के लड़के हैं। भैया इधर थोड़ा मौजूद हैं। SKS स्कूल के प्रिंसिपल हमारे बीच मौजूद हैं और मौजूद हैं श्री दीपक सोमथलिया, जो इस पूरे अंचल के, इस पूरे इलाके के एक विशिष्ट उद्योगपति के रूप में जिनकी पहचान है। हाईली क्वालिफाइड हैं, जॉब में थे और जॉब छोड़ करके इन्होंने आकर के he was interested in becoming a job provider instead of becoming a job seeker। उस सपने को इन्होंने साकार किया, अपना जॉब छोड़ करके आकर के, और आज सैकड़ों लोग उनके अंडर, उनके अधीन कार्य करते हैं। बहुत सफल उद्योगपति हैं और उनकी सफलता के पीछे उनका जो एमेनेबल नेचर है, कुशल नेतृत्व है, वाले दिनों के जो नागरिक हैं उनका निर्माण, दे आर द आर्किटेक्ट ऑफ द नेशन, दे आर द आर्किटेक्ट ऑफ द फ्यूचर जनरेशन ऑफ आवर कंट्री। इसलिए सबसे ज़्यादा सम्मान की पात्रता इन शिक्षकों की होती है, और शिक्षक के अलावा जो प्रिंसिपल के ओहदे पर जो बैठ गए हैं उनकी तो एक धाप, एक कदम और ऊंचाई होती है। इसलिए मैं आप सभी को अपने तहे दिल से आप लोगों का सबका सम्मान करता हूँ और ईश्वर से ये प्रार्थना है आप अपना अवदान यूं ही बढ़ाते रहें। क्यों कि अभी हमारे देश के अंदर में जो साक्षरता है, कुछ राज्यों को छोड़कर अभी भी जो काम में है, जो हमारा अभीष्ट लक्ष्य है, वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाए हैं। तो उसमें अहम रोल हम उद्योगपतियों का नहीं है, हम उद्योगपतियों का भी यही रोल है कि हम ये जो हमारे जो शिक्षा जगत से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं उनको हम मदद करें, उनके कार्य में हम बाधा न दें। और जैसे SKS ग्रुप के जो चेयरमैन साहब शर्मा साहब हैं, ये अपने आप में एक विभूति है। ये जो कार्य कर रहे हैं शिक्षा जगत के अंदर में, अभी जैसा परिचय मुझे मिला उनके प्रिंसिपल साहब के द्वारा जो बताया गया कि हमारे अंचल में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की बात सोच रहे हैं। हम किस मन से, किस अपने दिल से, दिल के किस कोने से उनको आभार प्रकट करें। हमारे अंचल के अंदर में मेडिकल कॉलेज अगर आ जाती है, वर्षों की हमारी मांग नहीं है कि एक यहाँ पर और मेडिकल कॉलेज नहीं होगा तब तक विकास नहीं हो सकता है। स्वास्थ्य बहुत जरूरी है दोनों की। अब शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य भी जरूरी है। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, स्वास्थ्य हुआ ठीक नहीं है तो कैसे पढ़ेगा। इसलिए जो अभी हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, ये मेडिकल कॉलेज तो काफ़ी समय पहले बन जाना चाहिए था, या 2002-2003 में, लेकिन हमारे साथ वो ट्रेजेडी हो गई। मेरा छोटा भाई था, वो एक्सपायर हो गया 2003 जनवरी में, तो हमको यहाँ से शिफ्टिंग होना पड़ा मथुरा दिल्ली। मेडिकल कॉलेज का भी इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ साथ मतलब प्रोग्राम प्लानिंग था बनाने के लिए। यहाँ अभी है कि मथुरा में होपफुली इंडस्ट्री शुरू हो जाएगा, बस सब कंप्लीट है मेडिकल कॉलेज का भी और यूनिवर्सिटी का भी। नेक्स्ट टारगेट यहीं पर है आपका, दुर्गापुर हो या रानीगंज हो या मंगलपुर हो, जहाँ भी अपना लिखा होगा वहाँ पक्का होगा। तो ये जरूर मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं आपके साथ हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी ज़रूरत आपको है, आप लोगों की ज़रूरत हमको है। जहाँ हमसे गलतियाँ हों
जहाँ सुधार की आवश्यकता हो, अगर मेरे को कोई सुझाव देंगे, मेरी गलतियों को बताएंगे। अच्छा दोस्त वही होता है जो अपने आदमी की गलतियों को बताए। मीठी मीठी बात करने से वो दोस्त नहीं हो सकता है। और सच में ही आप किसी प्रेम करते हैं तो उनकी जो कमियां हैं, उनकी जो गलतियां हैं, तो आप जरूर बताइए। क्योंकि अभी मैं काफ़ी लंबे समय के बाद, तो कोरोना काल में 2-2.5 साल सबके लिए मुसीबत के दिन रहे। इस बार घूम के हमने देखा तो काफ़ी इसमें अपना इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमने प्रिंसिपल साहब से कहती है, ये काम तो हमारा कराने का, जो भी इसमें काम कराना है। लेकिन दूसरा ये है कि आपको अच्छे टीचर रखने के लिए सीनियर क्लासों के लिए, कम से कम हाई स्कूल और अपना इंटर के लिए, उसके लिए जहाँ से भी आपको अच्छे टीचर मिलें, जिस कॉस्ट में मिलें, मंगलवार को सिख समाज के कुछ लोगों ने बर्नपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में चुनाव करवाने की मांग करते हुए आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात की। इस संदर्भ में बर्नपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के भूतपूर्व अध्यक्ष चरणजीत सिंह ने कहा कि पिछले काफी समय से यहां चुनाव नहीं हुआ है। एक ही परिवार से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पर कब्जा जमाया हुआ है। उन्हीं की मर्जी से यहाँ सब कुछ होता है। ऐसे में उन्होंने मेयर से गुहार लगाई कि जल्द से जल्द यहाँ या चुनाव करवाया जाए या सर्वसम्मति से अध्यक्ष की नियुक्ति हो, जिससे कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सुचारू ढंग से चले। जो भी गुरुद्वारे की सेवा करना चाहते हैं उनको समान रूप से मौका मिलना चाहिए। उन्होंने बर्नपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पर एक ही परिवार के दबदबे को खत्म करने के लिए मेयर से गुहार लगाई। उनको विज्ञापन दिए हैं कि पिछला 8 साल से एक परिवार जो बर्नपुर गुरुद्वारा में कब्जा करके रखा है, वहाँ पर इलेक्शन या सिलेक्शन कुछ नहीं हुआ है। हम लोगों ने उनसे डिमांड किया है कि वहाँ पर इलेक्शन या सिलेक्शन जो भी हो जल्द से जल्द कराया जाए, ताकि जो भी इक्कीस जुलाई को तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कोलकाता के धर्मतल्ला में शहीद दिवस का पालन किया जाएगा। इसे लेकर पूरे बंगाल के साथ साथ आसनसोल, रानीगंज, शिल्पांचल में भी तृणमूल कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। टीएमसी से जुड़े सभी नेता ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचने और इस सभा को सफल करने की कोशिशों में जुट गए हैं। इसी क्रम में रानीगंज के 89 नंबर वार्ड के पार्षद मुजम्मिल शहजादा ने आज रानीगंज के विभिन्न इलाकों का दौरा किया और लोगों के घर घर जाकर 21 जुलाई को कोलकाता चलने की अपील की। इस मौके पर रानीगंज टीएमसी के तमाम कार्यकर्ता भी उनके साथ थे। मुजम्मिल शहजादा ने लोगों से अपील की कि 21 जुलाई को सभी कोलकाता चले और शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दे। मुजम्मिल शहजादा ने कहा कि आज अगर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस बंगाल में तीसरी बार सत्ता में आई है तो इसके पीछे उन शहीदों का बलिदान है जिन्होंने 1993 में वाम फ्रंट के अत्याचार की वजह से जान गंवाई थी। उन्होंने कहा कि अगर उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो 21 जुलाई को कोलकाता चलना होगा और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी टीएमसी के कार्यकर्ताओं को क्या दिशा निर्देश देती है उनको सुनकर उन पर अमल करना होगा, ताकि ममता बनर्जी के आदर्शों पर चलते हुए और उन शहीदों के बलिदान को सार्थक करते हुए हम सब जनता की सेवा कर सके और बंगाल को ऊंचाई पर ले जा सके जहां वो था। इस मौके पर मोहम्मद इरफात, पिंटू सहित तमाम टीएमसी कार्यकर्ता मुजम्मिल शहजादा के साथ है। उसी के लिए इस बार ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को 21 जुलाई को कोलकाता जाना है और जनसभा को ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ लगाना है। इस आंदोलन
से हम लोग ममता बनर्जी लगी रही और आज ममता बनर्जी हमारे मुख्यमंत्री बनी और बंगाल को सही रास्ता दिखाया, वोट देने का हक दिया। हम लोग एडमिट कार्ड पे आज वोट दे रहे हैं और কারণ আমরা যে দলটা করি সেটা হচ্ছে মমতা ব্যানার্জির দল, মহামাটি মানুষের দল, তৃণমূল কংগ্রেসের দল। তাই আপনাদের কাছে আমরা বারবার অনুরোধ করছি, 21শে জুলাই আপনাদের সঙ্গে ধর্মতলা চলুন। রানীগঞ্জের বিধায়ক তথা এডিডিএর চেয়ারম্যান মাননীয় শ্রী তাপস ব্যানার্জি মহাশয় একটি মহামিছিল দেখেছেন রানীগঞ্জে। 21শে জুলাইকে সামনে রেখে এই মহামিছিল কালকে আমাদের রাজবাড়ি থেকে 5টার সময়, 5টার সময়, বৈকাল 5টার সময়, এই বৈকাল 5টার সময়। ये थी आज की कुछ अहम खबरें। देखते रहिए आसनसोल टाइम्स और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें ताकि शिल्पांचल की हर तरह की खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।